Hello, dear student. Uh, Welcome you all again. This is Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management, Part 1. And today we will discuss about the stalk rots of maize, which is the most destructive disease in maize. And before starting the class, I wanted to tell you that I am having a throat infection. If you can't understand any word and or sentence or any topic due to my voice, so please contact me directly on my phone number, or you can text me also and ask whatever you having your queries. I can reply you on message, or we can discuss on call also. So please let me know if you're having any problems. So let's start. Stalk rots of maize. In India, maize is the third most important cereal crops after rice and wheat, accounting for 9% of total food grain production. Stalk rot disease caused by various fungal and bacterial pathogens is and this is the most destructive disease of maize, which is discussed by Moncald and White in 2016. In 2015 to 2017, there is a field survey conducted for this experiment. In this experiment, symptoms of stalk rots on maize were observed in South India, in which the incidence ranged from 10 to 18%, and a loss of up to 30% was recorded. And this is a very huge loss. So that's why this is the most destructive disease. So let's discuss about the various pathogen which is caused stalk rot in maize. So in stalk rot, maize caused by various pathogen, that is fungal and bacterial, and they are following. First one is bacterial stalk rot, which is caused by Dehkia Z. Next one is Pythium stalk rot, and the pathogen is Pythium aphanidermatum. The next one is Fusarium wilt, and that is caused by Fusarium verticilloides. Next one is late wilt, that is caused by Magna Porthiopsis maedis, and last one is charcoal rot, that is caused by Macrophomina fasulina. Mostly pathogen are the most most of this pathogen caused rot also in different host. So let's start from bacterial stalk rot symptoms. So, bacterial stalk rot, which is caused by Dehkia Z. And before telling you symptom, I want to tell you some important information about this disease. The three bacteria pathogen have been reported to cause stalk rot of maize, namely um, Irvinia dissolvens, Irvinia chrysanthemi, PVZ, and Pseudomonas syringae, PV lepsa. The pathogen has been recently reclassified as Dehkia Z. Means इस पैथोजन का नाम डेकिया जी अभी 2005 में रिसेंटली इसे रिक्लासिफाइड किया गया है, बट इससे पहले इसके जो फॉर्मल नेम्स थे वो थे इरविना डिजॉल्वेंस, इरविना क्राइजेंथमी, पीवीजी, एंड शिडोमोनास सिरिंगी, पीवी लेप्सा. सो अब हम इस पैथोजन को डेकिया जी के नाम से जानते हैं, जो कि रिक्लासिफाइड करके इस नाम को बताया गया, जिसे सैमसन ने बताया था 2015 में. इस डिसीज़ में ये जो डिसीज़ है वो वर्ल्ड वाइड है, स्पेशली इन एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशिनिया. इंडिया में यह डिसीज़ बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम अभी सामने आया है, क्योंकि पहले इस डिसीज़ से हमें उतना लॉस नहीं रिकॉर्ड किया गया था, बट रिसेंटली हमने इस डिसीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस रिकॉर्ड किया गया है. और मोस्टली ये जो डिसीज़ है वह इंडिया के कुछ स्पेसिफिक एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि शिवालिक्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज कवरिंग स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एंड कश्मीर, एंड एडजॉइनिंग प्लेन्स एरिया ऑफ स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. मीन ये जो डिसीज़ है मोस्टली वह कौन से पोर्शन में आपको देखने को मिल रहा है, या मोस्टली आपको इंडिया के नॉर्थ पोर्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि मोस्टली आपकी हिमालयन रीजन में है, और प्लेन्स में अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, जो कि सब के सब नॉर्थ में ही इंडिया में आते हैं. तो ये जो डिसीज़ है डेकिया जी, ये इन एरिया में पैथोजन स्टॉक रॉट कॉज करता है.
सो हम सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। जैसा कि सिम्टम्स में देख सकते हैं, मैंने इसमें इमेज एक लगाया है, जिसमें हम इमेज में आप डिसीज़ बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से रॉटनिंग हो रही है। इसलिए इसे हम रॉट कहते हैं, क्योंकि जो पैथोजन है, पैथोजन के कारण जो होता है प्लांट में, स्टॉक में इसका मेनली रॉटनिंग आने लगती है। सो जो बैक्टीरियल स्टॉक है, यह मोस्टली symptoms appear when plants are 40 to 60 days old and the rot may extend from the base to upward and that is caused basal rot। जब डिसीज जो रॉटिंग है वो बेसल मतलब बेस से ऊपर की तरफ एक्सटेंड होने लगे तो वो बेसल रॉट कहलाता है। लेकिन अगर जब डिसीज़ अगर रॉटिंग का टॉप से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे हम टॉप रॉट कहते हैं। तो इसलिए हमें इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है बेसल रॉट एंड टॉप रॉट। दोनों में सिम्टम्स दो अलग अलग तरीके से आते हैं। पहले वी विल डिस्कस अबाउट द बेसल रॉट। सो इन बेसल रॉट लीव्स बिकम येलो एंड द इन्फेक्टेड टिश्यूज बिकम brown and soft. Internally, the stalk turn into soft masses of disintegrated tissues. A foul odor and presence of diphtheria larvae on stalk and decaying tissue are the most characteristic symptoms। Means इसमें होता क्या है, जो लीव्स होगी क्या होगी, वह येलो होने लगती है और जो इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं वो ब्राउन कलर के होने लगते हैं और सॉफ्ट होने लगते हैं। ये देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से ब्राउन कलर, इसमें जो टिश्यूज़ है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगे हैं और जो टिश्यू है वो क्या होता है, सॉफ्ट होने लगता है। सॉफ्ट होने से क्या होता है, सॉफ्ट होगा तो बहुत ईजिली, बहुत जल्दी ही, रैपिडली क्या होगा, रॉट हो सकता है। जो इंटरनली पोर्शन रहता है स्टॉक का, वह भी सॉफ्ट मासेस में कन्वर्ट होने लगता है और जिसकी टिश्यू होती है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है, यानी कि वो फैलने लगती है आपस से। वो जैसे कि वो जो सारे फाइबर्स हैं वो क्या आपस में बंधे हुए रहते हैं। लेकिन जब ये डिसीज़ होती है तो क्या होता है, वो जो फाइबर्स हैं, वो जो टिश्यूज़ हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि हम जब हम गन्ना खाते हैं, गन्ना को खाने के बाद गन्ने को खाने के बाद या फिर गन्ने से हम जब रस निकल जाता है तो किस तरह से दिखता है, उसमें सारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो सेम इसके कंडीशन में भी होता है। तो यही और इसके साथ ही साथ इसमें एक फाउल ओडोर आता है, यानी कि एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आएगी, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि यह बैक्टीरियल स्टॉक रॉट है। ऑल्सो rot may involve only one or two internodes or the entire length of the stalk, which finally dries up and its interior turn into a shredded mass of fibrous tissue। तो ये था बेसल रॉट का सिम्टम। अब हम देखते हैं टॉप रॉट का सिम्टम। टॉप रॉट के सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें विल्टिंग होती है। सबसे पहले विल्टिंग देखने को मिलता है एंड विल्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ द टिप ऑफ द मिडिल लीव्स इज द फर्स्ट विजिबल सिम्टम्स। मीन्स विल्टिंग और साथ ही साथ जो आपकी जो टिप की जो मिडिल लीफ है वो क्या होती है, ड्राई होने लगती है, जिससे जो कि इस डिसीज़ का सबसे पहला विजिबल सिम्टम्स होता है। एट द सेम टाइम a soft rod develop in the stalk at the base of the stem and rapid decaying in downwards is observed. Plant can easily pull out due to rotting and when ear will come out, the rotten grain will be developed. And this is the common symptoms of the bacterial stalk rot. And today, the next we will discuss about the symptoms of Pythium stalk rot. And Pythium stalk rot caused by Pythium aphanidermatum. You can see in image how Pythium aphanidermatum cause stalk rot in maize. So in symptoms, it can occur anytime during the season if condition is very wet। मीन्स अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा गीली कंडीशन में और वेदर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो तो ये डिसीज़ कभी भी अकर हो सकती है सीजन में। फर्स्ट सिम्टम शो इन इंटरनोड जस्ट अबव द सॉइल। मीन्स कि जो पहला सिम्टम्स है वो कहाँ शो होगा, वो सॉइल के जस्ट ऊपर जो पहला इंटरनोड है वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसके बाद जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने के बाद स्टॉक के पिथ सॉफ्ट और ब्राउन कलर के होने लगते हैं। स्टॉक का पिथ हम किसे कहते हैं,
पिथ यानी कि PITH, पिथ मैंने जब किसी प्लांट का जो टिश्यू होता है, स्टेम के अंदर का टिश्यू, उसे हम पिथ कहते हैं या फिर इसे हम मेडुला भी कह सकते हैं। तो जो स्टॉक रहती है यानी कि स्टॉक के अंदर की जो पिथ रहती है वो कैसे होने लगी, वो सॉफ्ट होने लगती है और साथ ही साथ ब्राउन कलर की होने लगती है और वो वाटर सॉफ्ट होने लगती है। देख सकते हैं कि वाटर सॉफ्ट होने की वजह से वो कैसे ड्राई होने लग गया है और उसमें किसी तरह का फाइबर डेवलप नहीं हुआ है। एवं आप इंटरनोड में यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से वाइट कलर की माइसीलियम यहाँ पे डेवलप है। तो ये था आपका फर्स्ट सिम्टम। साथ ही साथ जो स्टॉक है उसके पिथ सॉफ्ट और ब्राउन कलर के तो हो ही जाते हैं, साथ ही साथ स्टॉक को अगर हम ट्विस्ट करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। यानी कि अगर दोनों हाथों से इन्फेक्टेड स्टॉक को पकड़े और ट्विस्ट करें तो वो बहुत जल्दी ही गिर सकते हैं या फिर वो बहुत इजीली पुल आउट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें जो वेस्कुलर साथ ही साथ गिरने के बाद जब प्लांट अगर प्लांट गिर भी जाता है, यानी कि हम अगर प्लांट गिर गया इस डिसीज़ के कारण, रॉटनिंग के कारण, तो कुछ हफ्ते तक यह प्लांट ग्रीन रह सकता है, क्योंकि जो वेस्कुलर टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए कुछ समय तक के लिए ग्रीन दिखता है। तो ये था सिम्टम्स आपका पीथियम अफेनिडर्मेटम का। अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स देखेंगे आपका फिजेरियम का। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पिथ है वो डिसइंटीग्रेट हो गई, टिश्यूज़ किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए, तो यही था डिसइंटीग्रेट होना। नेक्स्ट अब हम फ्यूजेरियम वर्टिसिलॉइड्स के बारे में देखते हैं। जिसका सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरनोड के आउटर लेयर पे वाइट कलर के आपको फंगस का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। एंड द सिम्टम्स आर द लीव्स टर्न from a healthy green color to a dull green and the lower stalk become yellow. प्लांट में प्रीमेच्योरली डेथ हो जाती है, यानी कि प्लांट मेच्योर होने से पहले ही डेथ हो सकता है। इंटरनल टिश्यू में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ये देख सकते हैं कि आप इंटरनल टिश्यू में किस तरह से डिसइंटीग्रेशन हो गया है। साथ ही साथ अगर हम जब स्टॉक को जब हम अपने हाथों से जब पकड़ते हैं तो बहुत ही स्पॉन्जी फील होता है, यानी कि जब हम उसे अपने हाथों में स्टॉक को पकड़ेंगे तो जो आपका टिश्यू है वो डिसइंटीग्रेट होने के कारण बहुत ही स्पंजी फील होता है, और जब हम उसे स्क्वीज यानी कि पकड़ेंगे या स्क्वीज करेंगे तो हमें कैसा फील हो रहा है, वो स्पंजी फील हो रहा है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि जो माइसीलियम है क्या, वो नोट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये वाइट कलर का माइसीलियम आपको कॉलोनी दिख रही होगी, ये आपको देखने को मिलते हैं। जब स्टॉक को स्प्लिट करके ओपन करते हैं, यानी कि हम जब जो स्टॉक होता है उसको दो बराबर भागों में स्प्लिट करेंगे और ओपन करेंगे तो उसमें पिंक डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। यह पिंक डिस्कलरेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू रॉटनिंग के कारण ही डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा लेट स्टॉक रॉट, जो कि कॉज्ड है मैग्नोपोर्थियोप्सिस मेडिस के कारण, यानी कि लेट स्टॉक रॉट कॉज्ड बाय मैग्नोपोर्थियोसिस मेडिस। इस डिसीज़ में प्लांट प्रीमेच्योर होने से पहले, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज के बाद, जो फ्लावरिंग स्टेज आ जाने के बाद बट प्रीमेच्योर होने से पहले भी मर सकता है। जैसे कि फ्यूजेरियम ऑनली फॉर्म में भी क्या हो रहा था, यह प्रीमेच्योर स्टेज में मर सकता था, पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि यह फ्लावरिंग स्टेज के बाद, फ्लावरिंग आ जाने के बाद, यानी कि उसमें ईयर हेड निकल तो गए हैं लेकिन उसमें टैजलिंग आ गई है, फ्लावर्स आ गए हैं, बट पूरी तरह से वो डेवलप नहीं हो पाया है। तो जब प्लांट में प्रीमेच्योर कंडीशन के टाइम पे ही यह डेथ हो सकती है प्लांट की, अगर प्लांट इन्फेक्टेड है मैग्नोपोर्थियोप्सिस मेडिस से। इन्फेक्टेड प्लांट में टैजलिंग से पहले सिम्टम शो नहीं होते, यानी कि हम प्लांट में सिम्टम्स तभी देख सकते हैं जब उसमें टैजलिंग निकल आए, यानी कि फ्लावरिंग हो जाए। प्लांट में विल्टिंग होती है जो टॉप लीफ से स्टार्ट होती है और लीव्स डल ग्रीन होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन इनका कलर लूज होने लगता है और लीव्स ड्राई होने लगती है। सॉरी, जो लीव होता है वो क्या हो रहा है, आपका डल ग्रीन कलर का हो जा रहा है और इनका कलर धीरे धीरे लूज होने लगता है और लीव्स जिससे ड्राई होने लगती है। एडवांस स्टेज में प्लांट जो होता है, प्लांट के स्टॉक में ग्रीन कलर जाने लगता है, यानी कि लूज होने लगता है।
सो जब प्लांट का कलर लूज होने लगेगा और लोअर पोर्शन भी ड्राई होने लगता है और लोअर पोर्शन सिकुड़ने लगता है, साथ ही साथ स्टॉक जो होती है वो हार्ड होने लगती है और उसमें पर्पल टू डार्क ब्राउन कलर में चेंज होने लगता है। लोअर इंटरनोड भी प्रोमिनेंट सिम्टम्स शो करते हैं, यानी कि सेम सिम्टम्स लोअर इंटरनोड्स में भी आपको, क्योंकि आपको जो स्टॉक है वो हार्ड हो जाएगी और उसमें भी पर्पल टू डार्क ब्राउन कलर की चेंजेस होने लगेंगी। डिसीज प्लांट केवल अनडेवलप्ड सिकड़े हुए कर्नल्स ही प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो अगर उनमें कर्नल प्रोड्यूस होंगे, ईयर हेड निकलेगा, तो जो कर्नल्स होंगे वह कैसे होंगे, अनडेवलप्ड होंगे और सिकड़े हुए होंगे। सीवियर केस में जो डिसीज़ है वो 100% तक इसमें लॉस कॉज कर सकता है। तो लेट स्टॉक रॉट भी बहुत ही एक डिवास्टेटिंग पैथोजन है। नेक्स्ट सिम्टम्स हम देखते हैं चारकोल रॉट का, जो कि कॉज्ड होता है माइक्रोफोमिना फैसिलिना। आप इमेज में देख सकते हैं कि इसे चारकोल रॉट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें चारकोल समान स्क्लेरोशिया डेवलप होने लगते हैं। इस डिसीज़ में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स तब शो होता है जब प्लांट मैच्योरिटी स्टेज में आने वाला रहता है। साथ ही इस पैथोजन के अफेक्ट होने वाले प्लांट में प्री मेच्योर रैपनिंग भी देखी जा सकती है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है तो वो उसमें प्लांट में प्री मेच्योर रैपनिंग भी देखने को मिल सकती है। प्लांट के स्टॉक में सिम्टम्स नोड्स में बनना स्टार्ट होते हैं। लोअर इंटर नोड्स में बाहर की तरफ से स्ट्रॉ कलर की हो जाती है। साथ ही स्टेम के टिश्यू मीन्स यानी कि जो उनके पिथ होते हैं वह भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। मोस्टली जितने भी आपका स्टॉक रॉट है उसमें जो पिथ है प्लांट का स्टॉक का वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। चारकोल रॉट में भी इसका जो पिथ है वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इन्फेक्टेड स्टॉक रॉट अगर अगर उसको लॉन्गिट्यूडिनल कट किया जाए, यानी कि उन्हें स्प्लिट किया जाए, तो हम उसमें जो फाइबर है यानी कि जो उसका मास है, सॉरी, उसके फाइबर्स में हम बहुत सारे चारकोल यानी कि उसमें बहुत सारे ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि स्क्लेरोशिया होता है। इस डिसीज़ में जो अफेक्टेड स्टॉक जो पिथ है, जो अफेक्टेड स्टॉक है, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि जो उसमें स्मॉल ब्लैक कलर के क्या हो रहे हैं, स्क्लेरोशिया डेवलप हो रहे हैं और साथ ही रूट्स में भी स्क्लेरोशिया दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रूट्स में भी स्क्लेरोशिया आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस डिसीज़ का नाम चारकोल रॉट है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, चारकोल हो गया, बट ये है आपका चारकोल रॉट, प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। चारकोल रॉट में क्या हो रहा है, अगर हम इसका सिम्टम्स देखें तो मोस्टली इसमें अगर हम बीच को इसको डिवाइड करके देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया डेवलप हो रहे हैं, जबकि जो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म था उसमें क्या हो रहा था, पिंक कलर का डिस्कलरेशन आ रहा था स्टॉक के अंदर में। वहीं आपकी लेट विल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा था, इसका जो आपका स्टॉक हो रहा है उसमें सबसे पहले तो क्या हो जाए, जो लीव्स है वो क्या हो रही है, डल ग्रीन होते जा रही है, साथ में अपना कलर लॉस करने लगेगी और लीव ड्राई हो जाती है। साथ ही साथ जो स्टॉक होता है वो ग्रीन कलर, उसका भी ग्रीन कलर जाने लगता है और लोअर पोर्शन ड्राई और सिकुड़ने लगती है। और साथ ही साथ इसका क्या होता है, जो स्टॉक है वो हार्ड होने लगता है और पर्पल टू डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगता है। पीथियम फेनिडर्मेटम में भी आप इंटरनोड्स में जो सॉइल के जस्ट अबव वाला इंटरनोड है वो इनफैक्ट पहले हो रहा है। इसमें जो पिथ है वह भी सॉफ्ट, इसकी जो स्टॉक की पिथ है वो सॉफ्ट हो रही थी और ब्राउन कलर का उसमें डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा था और पूरा का पूरा जो एक फाइबर है वो आपस कैसा हो रहा था, वो सिकुड़ जा रहा था, जिससे उसमें गैप हो जा रही थी और बहुत ईजिली ही उसे ट्विस्ट करने से वो पौधा प्लांट निकल सकता है। जबकि आपका बैक्टीरियल में क्या हो रहा था, इसमें बैक्टीरियल स्टॉक रॉट में क्या हो रहा था, आपको दो तरह के सिम्टम शो हो रहे थे। एक हो रहा था आपका बेसल रॉट और दूसरा टॉप रॉट। बेसल रॉट में बेस से ऊपर की तरफ जब रॉटनिंग जाएगी तो वो बेसल रॉट कहलाएगा और टॉप रॉट में क्या, जब ऊपर से टॉप रॉट स्टार्ट होगी और रॉटनिंग स्टार्ट होगी और नीचे की तरफ वो बढ़ने लगेगी। तो ये था आपका सिम्टम्स। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेकिया जी से। पहले हम इसका देखते हैं टैक्सोनॉमिकल ट्री और क्लासिफिकेशन। इसका डोमेन है बैक्टीरिया, फाइलम है प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास है इसका गैमा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर है एंट्रोबैक्टीरियल्स, फैमिली है एंट्रोबैक्टीरिएसी,
जीनस है डेकिया एंड स्पीसीज है डेकिया जी, सॉरी इसका स्पीसीज जो है वो जी है, बट जब भी हम स्पीसीज लिखते हैं तो उसका पूरा डेकिया जी ही लिखते हैं, मीन्स पूरा पैथोजन का नाम लिखते हैं हम। सो इस पैथोजन के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। जो डेकिया जी बैक्टीरिया है वह मोटाइल होता है, ग्राम नेगेटिव होता है और रॉड शेप का होता है। आप देख सकते हैं कि यह रॉड शेप का बैक्टीरिया है। जो इसका साइज़ होता है वो मोस्टली 0.8 टू 3.2 इंटू 0.5 टू 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है, बट जो इसकी एवरेज साइज़ होती है वो मोस्टली 1.8 टू 0.6 माइक्रोमीटर देखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे देर आर 3 to 14 बट मोर यूजुअली 8 to 11 पेट्रीट्राइकस फ्लाइजिला, मीन्स जिसमें क्या है पेट्रीट्राइकस फ्लाइजिला पाए जा रहे हैं, जिसमें कि 13 से 14 तक फ्लाइजिला देखने को मिलता है। पर मोस्टली क्या हो रहा है आपका यूजुअली 8 से 11 तक आपको फ्लाइजिला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया है यह अगर हम इसे किंग्स बी मीडिया में ग्रो करें तो यह वाइट एंड स्लिमी शाइनिंग कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। सो ये था कैरेक्टर ऑफ etiology ऑफ डेकिया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं पीथियम अफेनिडर्मेटम। सो क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल ट्री ऑफ पीथियम अफेनिडर्मेटम। डोमेन यूकैरियोटा किंगडम, क्रोमिस्टा फाइलम, उमाइकोटा क्लास, उमाइसिटीज ऑर्डर, पीथियल्स फैमिली पीथिएसी, जीनस पीथियम एंड स्पीसीज पीथियम अफेनिडर्मेटम। एंड ऑल्सो आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि जितने भी उमाइसिटीज फंगस होते हैं वो एक ट्रू फंजाई नहीं होते हैं। सो यह दो तरह से रिप्रोडक्शन करता है, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। सो एसेक्सुअल में पीथियम अफेनिडर्मेटम प्रोड्यूस टर्मिनल इनफ्लैटेड लोबेट स्पोरेंजिया विथ हाइफल स्वेलिंग अप टू 20 माइक्रोमीटर वाइड। ये आपका स्पोरेंजिया आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजिया का है और उसमें हाइफल स्वेलिंग भी आप देख सकते हैं। सो स्पोरेंजिया गेव राइज टू ब्लाइफिलाजिलेट जूस्पोर, यानी कि जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर हम सब जानते हैं कि स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर प्रेजेंट रहते हैं और स्पोरेंजिया जूस्पोर बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो कि टिंसल और विप्लैश दोनों टाइप के फ्लैजिला डेवलप करते हैं। ये था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पीथियम अफेनिडर्मेटम एक होमोथैलिक पैथोजन है। हमने जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो फर्स्ट ईयर में हमने देखा था कि होमोथैलिक हेटेरोथैलिक ये सब क्या होता है। होमोथैलिक में क्या होता है, जब मेल फीमेल गैमेटेंजिया एक ही बॉडी में पाई जाती है, एक ही स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, होमोथैलिक। जो पीथियम अफेनिडर्मेटम होता है वो क्या करता है, मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया दोनों ही प्रोड्यूस करता है। और फीमेल गैमेटेंजिया को हम कहते हैं ओगोनियम और मेल गैमेटेंजिया को हम कहते हैं एंथ्रीडियम। जो ओगोनियम होता है वह ग्लोबोस होता है, स्मूथ होता है और 20 to 25 माइक्रोमीटर इन डाया देखा गया है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका है एंथ्रीडियम और ये वाला स्ट्रक्चर है आपका उगोनियम। जो उगोनियम का आप शेप देख सकते हैं कि ओवल शेप का है, ये ग्लोबोस से ओवल शेप का है, स्मूथ है और 20 to 25 माइक्रोमीटर डाया का है। यूजुअली एवरेज जो इसका साइज़ होता है वो मोस्टली 23 माइक्रोमीटर ही रिकॉर्ड किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ जो ये आपका एंथ्रीडियम है यह इंटरकैलरी होता है और समटाइम टर्मिनल भी होता है। यह एक ब्रॉडली सेक शेप का होता है। आप देख सकते हैं कि एक सेक शेप्ड स्ट्रक्चर है और जो इसका साइज़ होता है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर एंड 10 to 14 माइक्रोमीटर इंटू 10 to 14 माइक्रोमीटर जो इनका साइज़ होता है टोटल। साथ ही साथ स्पोर जो होते हैं वह 1 से 2 मोनोसीलियस एंथ्रीडिया पर उगोनियम, यानी कि एक उगोनियम में 1 से 2 मोनोसीलियस एंथ्रीडिया के फर्टिलाइजेशन के बाद ही एक सिंगल स्पोर प्रोड्यूस होता है। ये था आपका। अब हम देखते हैं फ्यूजेरियम वर्टिसिलियम। पहले हमने देखा पीथियम, अब हम देखेंगे फ्यूजेरियम वर्टिसिलियम। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं।
जिसका किंगडम है वह है फंजाई, डिवीज़न एस्कोमाइकोटा, क्लास है सॉर्डेरियोमाइसिटीज, ऑर्डर है हाइपोसीरियल्स, फैमिली है नेक्टेरिएसी, जीनस है फ्यूजेरियम एंड स्पीसीज है वर्टिसिलॉइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो पैथोजन है यह मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया प्रोड्यूस करता है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें छोटे छोटे माइक्रोकोनिडिया है। ये आपका माइक्रोकोनिडिया और ये आपका मैक्रोकोनिडिया है। ये आपका ये जो फर्स्ट के दो इमेजेस हैं ये माइक्रोकोनिडिया के हैं और ये सेकंड इमेजेस, ये दोनों इमेजेस मैक्रोकोनिडिया के हैं। ये दो, एक साइड है आपका माइक्रोकोनिडिया, सेकंड साइड है आपका माइक्रोकोनिडिया। अब हम पहले हम देखते हैं मैक्रोकोनिडिया कैसे होता है। जो माइक्रोकोनिडिया होता है वह हाईलाइन होता है और टिप्स की तरफ कर्व्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ टिप की साइड ये थोड़ा सा कर्व्ड है ना, इसमें स्लाइटली कर्व्ड है टिप की तरफ, और इसमें 3 to 5 सेप्टेशन होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें सेप्टेशन है 1 2 3 4, यानी कि इसमें 3 to 5 सेप्टेशन हो सकते हैं और जिसका साइज़ होगा वो 2 to 5 into 15 to 16 माइक्रोमीटर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोकोनिडिया। जो माइक्रोकोनिडिया होता है वह अबैंडेंड होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। यह सिंगल सेल्ड होते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो 2 to 3 into 5 to 12 माइक्रोमीटर होता है और यह चेन में बॉर्न होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह चेन में एक के ऊपर एक प्रोड्यूस होते हैं और जो कोनिडिया होता है वह अनब्रांच्ड होता है। ये था आपका फ्यूजेरियम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नोपोर्थियोप्सिस मेयडिस। जो मैग्नोपोर्थियोप्सिस मेयडिस होता है इसके जो कोनिडियोफोर होते हैं वो हाईलाइन होते हैं, सेप्टेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं और यूजुअली ये 4 to 7 सिंगल सेल्ड ओवल टू सिलेंड्रिकल एंड हाईलाइन स्मूथ वॉल्ड कोनिडिया बियर किए होते हैं। ये जो कोनिडिया होते हैं ये अबैंडली मीन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं एंड इनका जो साइज़ होता है वह क्या होता है, ओवल टू सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इनका साइज़ क्या होता है 5 to 7 माइक्रोमीटर इन विड एंड 10 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। साथ ही जो कोनिडिया है वो बहुत ही जल्दी रैपिडली डेवलप होता है और यह बाइपोलर जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ डेवलपिंग के टाइम यह 3 जर्म ट्यूब भी प्रोड्यूस कर सकता है। जो इसकी हाइफी होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर की होती है विड्थ में एंड यह हाईलाइन होती है, सेप्टेड होता है, ब्रांच्ड होता है और डिक्यूबेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेज में आपको देख सकते हैं आप इमेज में आप देख सकते हैं कि ए से लेकर जो डी तक का है इमेज, यह कोनिडियोफोर है। इसके बाद जो ई और एफ है ये आपका कोनिडिया है। नेक्स्ट जी से लेकर आई तक, GHI, यह टिपिकल हाइफी स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। किस तरह से एक हाइफी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाइफी स्ट्रक्चर एक पैथोजन का बनता है। जो नेक्स्ट है आपका जे से लेकर एम तक, इसमें आप स्क्लेरोशिया को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। ये स्क्लेरोशिया लाइक बॉडीज़ हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये जो इमेज है यह एक कल्चर से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका मैक्रोफॉर्मिना फैसिलिना। इसका किंगडम है फंजाइम, डिवीज़न एस्कोमाइकोटा, क्लास है डोथियोडीमाइसिटीज, ऑर्डर है बोट्राइटोस्फेरियल्स, फैमिली है बोट्रायोस्फेरिएसी, जीनस है माइक्रोफॉर्मिना और नेक्स्ट इसकी स्पीसीज है फैसिलोनिम। इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें स्क्लेरोशिया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्क्लेरोशिया है। ये जो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हैं जाल के समान, ये हाइफी है। ये आपका पिक्नीडियम है और पिक्नीडियम में प्रोड्यूस होता है कोनिडिया और ये आप हाइफी देख सकते हैं कि किस तरह से हाइफी इसमें दिखती है। इसकी हाइफी भी सेप्टेड है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो पिक्नीडिया होता है वह साइज़ है उसका 100 to 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर देख सकते हैं। क्योंकि यह एक राउंड शेप है तो इसे डायमीटर में इसका शेप को हम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इसका साइज़ है वो डायमीटर में होगा जो कि 100 से 200 माइक्रोमीटर है। जो पिक्नीडियम होता है वो डार्क और ग्रेश कलर का होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसकी एज होने लगती है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो उसका शेप होता है वो ग्लोबोस होता है और फ्लैटन ग्लोबोस होता है।
साथ ही साथ इसमें ओस्टियोल प्रेजेंट होता है, जो कि डेफिनाइट ट्रूनिकेट ओस्टियोल होता है। जो पिक्नीडिया है वह कोनिडियो 4 पेयर के रहते हैं, जो कि सिंपल होते हैं और रॉड शेप्ड के होते हैं, जिनका साइज होता है 10 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ये कोनिडिया 4 कोनिडिया बियर की होते हैं, जो कि कोनिडिया सिंगल सेल्ड होते हैं, हाईलाइन होते हैं और इलेप्टिकल टू ओवल शेप के होते हैं। साथ ही साथ यह माइक्रोस्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करता है। जो माइक्रोस्क्लेरोशिया होता है वो जेट ब्लैक कलर का होता है और स्मूथ होता है, साथ ही साथ राउंड टू ऑब्लॉन्ग और इरेगुलर शेप में होता है। इसकी जो हाइफी है वह सेप्टेड होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इसकी हाइफी क्या है। यहाँ पे सेप्टेशन है, ये सब क्या है, इसके सेप्टेशन है। इसकी हाइफी सेप्टेड होती है, हाईलाइन होती है, टर्निंग इनटू हनी और ब्लैक कलर की भी हो सकती है। यानी कि इनिशियली जब ये हाइफी प्रोड्यूस होती है तो ये हाईलाइन होती है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो होने लगती है, ओल्ड होने लगती है, इसका कलर ये हनी और ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसीज साइकिल पर, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू। और आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी आपको इशू हुआ और समझने में प्रॉब्लम हुई है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।